चलिए आपको सीधा कोलकाता लेकर चलते हैं, जहां पर इन्वेस्टर्स मौजूद हैं और धीरज श्रीवास्तव संबोधित कर रहे हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, खमागणी, राम राम। आज जैसे मैं आपका यहाँ पे इस्तकबाल करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शरीर से हम लोग इधर बैठे हैं, लेकिन दिल से आपकी तरफ बैठे हैं। अभी कुछ दिन पहले आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल ऑफ बाची कारकरिया इन टाइम्स ऑफ इंडिया, वेयर शी मेंशन्स दैट कोलकाता हैज लॉन्ग बीन द लार्जेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान. Bengal, we know, is a second home for many Rajasthanis, and their roots in Bengal can be traced to the 18th century and back to pre-independence, when the Birlas put up their first cotton mill in Kolkata, which was then called as Calcutta. Their forefather toiled hard, coming straight to Bada Bazaar, fresh from the villages of Rajasthan. They lived here in basas with a common mess and did business sitting on wide gaddas, while the wives and children stayed back in Rajasthan. They pioneered the cashless hundi remittances system. Today, they continue to dominate the business landscape of Bengal. I believe that they run almost every hospital and finances every other Bengali film. The Rajasthanis keep the fight on in Kolkata. Literally, the Calcutta Electric Supply Corporation is owned by one of us, Sanjeev Goenka's group. We salute Rajasthanis for this journey from gaddis in Kolkata's Bada Bazaar to big boardrooms, from traders to a flourishing industrial community and changing the face of entire independent India. My friends, your land which you left is also not the same. आज वो राजस्थान नहीं है जिसको आप लोग छोड़ के आए थे. It has transformed as you were transforming India with the industrial activity and creating jobs for millions of people. Rajasthan is emerging as a preferred destination for industries. And we are here to invite you all to the Invest Rajasthan Summit, which is going to be held in Jaipur on 24th, 25th of January 2022. This event is aimed at sensitizing the industry about Rajasthan's key strengths, proactive policies and incentives and innumerable opportunities for investment across sectors. Abhi aapne, my colleague Rohitash presented before you the kind of opportunities which are existing today, the kind of changes which we have brought. You shared the experience of Poddar Sahab and Sitaram ji and also Rohit Bora ji, who is also an industrialist. किस तरीके से उन्होंने राजस्थान के बदलते हुए परिवेश में अपने आप को फायदा लिया और राजस्थान ने organization I represent here today, Rajasthan Foundation, is also created under the vision of our Chief Minister Ashok Gehlot ji, recognizing the need to sustain and renew meaningful connections with the NRRs, and the government of Rajasthan was a pioneer in recognizing the importance of its diaspora and set up this designated organization called Rajasthan Foundation. अभी आपने सुना हमारे मित्र ने कहा कि वन स्टॉप शॉप. So Rajasthan Foundation also acts as a one-stop solution for its Pravasi community, strengthening the bonds between your state, your own homeland and yourself. We have been actively engaging with our Pravasi community worldwide on a common platform. आपको जान के अच्छा लगेगा कि आज दुनिया भर के करीब 52 देश के more than 68 ऑर्गेनाइजेशंस जो डिफरेंट सेक्टर्स में काम कर रही हैं, राजस्थानी कम्युनिटी के लिए काम कर रही हैं, कुछ रीजन बेस्ड हैं, कुछ और किसी आधार पर बनी हुई हैं, उन सबके साथ राजस्थान फाउंडेशन ने संपर्क किया है
वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और आज हम लोग उनके साथ मिलकर के कदम से कदम काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, धारीवाल साहब ने भी कई बार इंटरेक्शन किया हमारे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। वर्चुअल दौर में हम लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे, लगातार उनके सुख दुख में सम्मिलित रहे। We have ensured our engagement during the pandemic times also. I take this opportunity to thank our Pravasi community from this platform who came forward in a very big way to support Rajasthan, their own motherland, during the pandemic times. We had set up an organization called Doctors of Rajasthan International, that is DORI, DORI, और इसमें 112 डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हैं अपने फील्ड के, उन्होंने एक कॉल डोरी के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आज राजस्थान के किसी भी गांव में बैठा व्यक्ति बड़े से बड़े डॉक्टर को अमेरिका, इंग्लैंड, रशिया, चाइना, कहीं पर भी अपनी ऑडियो वीडियो की मदद से उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन ले सकता है, उनसे राय ले सकता है, उनसे इलाज के बारे में बात कर सकता है। NRRs have been proactive in investing in the state. I am happy to share that Rajasthani diaspora in India and abroad also, they have responded strongly to our invite to be part of Rajasthan's new wave of industrialization. Our recent visit to Dubai, Mantri ji was also there. It showed the immense interest that NRRs have in re-engaging with their own homeland. Leveraging the networks of NRRs based in Dubai, we signed MOUs to the tune of more than 45,000 crores. राजस्थानी चाहे राजस्थान से बाहर देश और दुनिया में कहीं भी रहते हो, लेकिन अपने मन का, अपनी आत्मा का, अपना एक अंश उसी मिट्टी पर बना रहता है और आपका घर ही है राजस्थान। With your enterprise and acumen, we can take Rajasthan to new heights. We are here to forge new partnerships, the ones that endure, the ones that last and lead to growth of the economy and prosperity of the people of the state. Come join us on this exciting journey. I am sure you will not be disappointed, and with these kind words, wish you a very Merry Christmas and good wishes for the coming New Year. Stay safe. Thank you very much. Thank you, Neeraj. तो सीधी तस्वीरें कोलकाता से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इन्वेस्टर मीट समिट का आयोजन किया जा रहा है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी यहां पर मौजूद हैं। फिलहाल धीरज श्रीवास्तव को आप सुन रहे थे, यहां पर इन्वेस्टर्स को वो संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने साफ कहा कि जो इन्वेस्टर्स हैं राजस्थान उनके लिए परफेक्ट डेस्टिनी है, इसलिए वहां उन्हें सिद्धांत नारायण पॉल साहब, संजय साहब जो चेयरमैन है CCI, CIIT राजस्थान स्टेट के, और तोमर साहब रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट, सीताराम जी अग्रवाल और दूसरे रिनाउंड इंडस्ट्रियलिस्ट पोतार साहब, तथा प्रॉमिसिंग हमारे MLA रोहित बोरा साहब, जिनकी खास तौर पर जो है इंडस्ट्रीज के बाबत और उनकी प्रोग्राम्स के बाबत जो है अच्छा अपनी स्थिति है इनकी, और राजस्थान कमिश्नर राजस्थान फाउंडेशन धीरज श्रीवास्तव साहब, मैं आप सबका स्वागत करता हूं और साथ ही साथ ये निवेदन करता हूं कि इस रोड शो के कार्यक्रम में आप सब महानुभावों ने और बहनों ने जिस प्रकार से शिरकत की है, निश्चित तौर पर जो है ये हमारे लिए खुशी की बात है। मैं जो पिछला 1.5 साल निकला वो कोरोना का टाइम था, और उस कोरोना के वक्त में, उस महामारी के वक्त आप सभी प्रवासियों के सहयोग से और प्रदेश के लोगों की इच्छा शक्ति से
और ख़ास तौर पर हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए इंतजाम की वजह से आज राजस्थान का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जिस तरीके से इस कम से कम नुकसान होने दिया गया कोविड से और जैसे बेहतरीन इंतजाम किए गए, मैं ये समझ कर कहता हूँ कि देश की और किसी प्रदेश में ऐसा इंतजाम नहीं हुआ। कि मुख्यमंत्री जी की सोच थी, टोटल राजस्थान जो है आज ऑक्सीजन के लिए आत्मनिर्भर हो गया। और ऑक्सीजन ही के लिए नहीं बल्कि जो हर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए सारा करीब पूरी तरह से जिस प्रकार से दूसरी स्टेट्स पर और सेंटर पर जो है डिपेंडेंट था, वो आज हम डिपेंडेंट नहीं है। ये सब प्रयास जो है मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए, उनकी जगह जगह प्रशंसा है। तो मैं आज इस राजस्थान फाउंडेशन के नए कार्यक्रम जो हमने चलाया है, मिलिए सरकार से, और उस मिलिए सरकार में हम जगह जगह जाकर के इस प्रकार का रोड शो करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम दुबई भी गए थे, दुबई वालों ने बड़ा वेलकम किया। 3 रोज तक लगातार वहाँ पर बैठते चली, काफ़ी कुछ बड़ी तादाद में जो है वहाँ पर MOUs हुए, लेटर ऑफ इंटेंट हुए, और होने के बाद भी जो उसके फॉलोअप था, वो फॉलोअप में जो है वो लोग वापस जयपुर आए और जयपुर आकर के जो है काफ़ी चर्चाएं की। तो इसी प्रकार से जो है दूसरी जगह भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कलकत्ता में मौजूद है आपके सामने, और ये एक नई ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर होने के प्रयास है। और मैं ये मान करके चलता हूँ कि इस बार हम काफ़ी कुछ सफल होंगे आपके सहयोग से। कई लोगों ने सुझाव दिए, उन सुझावों पर भी जो है जैसे रियल इस्टेट के बाबत, मैनेजमेंट के बाबत काफ़ी अच्छे सुझाव हमें मिले। उनको तुरंत हमने नोट करके अधिकारियों को भी बताया और अधिकारियों से सबके साथ उन लोगों की चर्चाएँ भी करवाई। और चर्चा करने के बाद में जिस प्रकार का फीडबैक हमें मिला कि इन्वेस्ट करने वाले जो व्यक्ति है वो काफ़ी कुछ प्रसन्न होकर के जो है वहाँ से निकला है। ये सब बातें आपके सामने हैं। राजस्थान फाउंडेशन ने पूरे विश्व भर में जितने भी प्रवासी हैं उनको जोड़ने का काम किया है। अभी विजुअल जो है काफ़ी कुछ बड़ी चर्चा है, वही पूरे विश्व के लोगों वो भी उसमें भी काफ़ी सक्सेस मिली। इसी प्रकार से इस बात की खुशी है कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, काफ़ी कुछ आप और यकीन है, और मुझे यकीन है कि ऐसे प्रपोजल्स जो हैं वो प्रदेश के बहुमुखी विकास के लिए जो है निश्चित तौर पर सुनिश्चित। जयपुर में 24 और 25 जनवरी को जो राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट हो रही है, तो उसके लिए भी आप सबको आमंत्रित करता हूँ। बड़ा इवेंट है, आप आएंगे तो चारों तरफ लोगों से मिलना भी होगा और आपको देखेगा भी सही कि साहब राजस्थान में क्या किस प्रकार से इंडस्ट्रीज की इकाइयों की स्थापना के लिए, नई इकाइयों की स्थापना के लिए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या। मोटी बात यह है कि इंडस्ट्रीज चाहता क्या है, इंडस्ट्रीज चाहता है कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिटर्न अच्छा मिले, इंडस्ट्रियल पीस हो, कानून व्यवस्था वहाँ की अच्छी हो, हर तरह की जो है उसको सहयोग सरकार की तरफ से मिले। मैं इन सब चीज़ों को लेकर के आप लोग सामने खड़ा हुआ हूँ और एश्योर करता हूँ मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पर कि ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर जब राजस्थान में इन्वेस्ट करने को मिलेगी। वैसे भी देखा जाए तो राजस्थान समस्त प्रकार के संसाधनों से परिपूर्ण है। बिजली है, पानी है, उस ज़माने में पानी की किल्लत थी, बिजली की भी किल्लत थी, वो सब हमने पूरी की। और इसी प्रकार से सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, माइनिंग है, हर तरह का माइनिंग है वहाँ पर। माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री जो है लगने के लिए काफ़ी कुछ स्कोप है। और इन सब के बाद भी मोटी बात है कि सरकार का सुधारवादी दृष्टिकोण है, सहयोगी दृष्टिकोण है, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। तो कई इंडस्ट्री ये समझ के चलता
बताएगा मुझे वहाँ भी जाना पड़ेगा, यहाँ भी जाना पड़ेगा, वहाँ भी जाना पड़ेगा, चक्कर काटने पड़ेंगे। ये सब बातें आपको खत्म हो गई। वो पुराने टाइम की बात भूल जाएगी कि क्या होता था क्या नहीं होता था। सब कुछ परिपेक्ष बदल गया है। अब ऐसा सहयोग का वातावरण आपको किसी दूसरे प्रदेश में नहीं मिलेगा जो राजस्थान में आज मिला। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे जो वैसे भी मोटे तौर पर भौगोलिक स्थितियाँ जो राजस्थान की है, आपका कॉरिडोर निकल रहा है DMIC, DFC और DMIC का कॉरिडोर निकल रहा है। 40% राजस्थान से निकलता है। इसके अलावा देखिए पॉलिसीज कई बदली, अभी बताया मैंने, तोमर साहब ने कई काफ़ी चीज़ें बताई। कई पॉलिसीज बदली, सारी पॉलिसीज बदल के रख दी। आप देखें MSME की DAG 2000 फैसिलिटेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड ऑपरेशन एक्ट जो है वो लागू हो चुका है। आपका डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट और एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है। 3 वर्षों तक इंडस्ट्री लगाने के बाद आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है और किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ये पहली बार हुआ। बस 3 वर्षों के बाद में जाकर के आपको इजाजत लेनी पड़ेगी। कहीं जाना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। और आपको जो है ये राजस्थान देश में ऐसा पहला प्रदेश है जिसमें ये व्यवस्था की गई है। पहला प्रदेश है। कोई इंडस्ट्री जाता है 3 साल तक इंडस्ट्री लगाने के बाद में जो है उसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंस्पेक्टर नहीं जाएगा, कोई अफसर नहीं जाएगा, कोई नोटिस नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं आएगा। इसी प्रकार से अनुमतियों का जहाँ तक सवाल है, तोमर साहब ने बताया ना कि 10 करोड़ रुपये से ऊपर के निवेशों को वरिष्ठ शॉप राजस्थान औद्योगिक विकास नीति लागू की गई 2019 में और राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना ये लागू की गई है, जिससे कि कस्टमाइज पैकेज के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं सारे के सारे।